Shraddha Walker's murder case. As the police investigate the crime, Shraddha Walker's DNA has matched with her father. This, of course, establishes the fact that it was indeed Shraddha. Her father was hunting for Shraddha after she went missing for months until they had suspicion that she could have been murdered. And while the police investigates the case and the chopped body parts strewn around different parts of the national capital, those body parts that went for a DNA test to check if at all it is Shraddha. They've tried to match it with Shraddha's father's DNA, and as we hear, a massive breakthrough that comes in this case, that the chopped parts of her body that were strewn across parts of Delhi, the DNA has matched with her father. Let me cut across to Shreya Chatterjee, tracking those details for us. Shreya, a quick word from you on this DNA test that was done. We believe that it's matched with her father. What more do we know? I think that is coming in so far as the investigation by Delhi Police is concerned. The CFSS report on the body parts that were retrieved from the Mehrauli forest, which were the dismembered body parts that Delhi Police has recovered, have matched the DNA of Shraddha Walker's father. So this is a huge breaking that is coming in, that's obviously going to help the Delhi Police make it a watertight case right now. And we do know that this is what the Delhi Police was waiting for quite some time. And there were at least 14, initially 14 dismembered body parts that were sent to the CFSL as well as the FSO. And now they have matched Shraddha Walker. What we also understand that the polygraph test report has also been submitted to Delhi Police. So massive break-in coming in so far as the investigation into the case is concerned, Nabila. Right. Tell us a little more, Shreya, as we see the police have already near cracked the case, and the polygraph test and the lie detector test, and post that the narco test where Aftab is said to have admitted to the crime. What more is the police now investigating? Any loose ends that need to be covered? Well, you know, Nabila, it's important to tell our viewers that the Delhi Police had obviously got the verbal confession of Aftab about the entire incident, how he murdered Shraddha in the flat. All right, stay with us, stay with us. I'm going to quickly cut across to Vikas Walker, joining us on the phone line, Shraddha's father. Sir, really sorry to hear the news, but this comes as a breakthrough for the police as they investigate the case. The DNA of Shraddha is matched to yours. How would you receive this piece of information? वालकर जी, यहाँ पर जो न्यूज अब सामने आया है कि श्रद्धा का डीएनए आपसे मैच हुआ है, आप क्या कहते हो? जी हाँ, मैं अभी जस्ट देख रहा हूँ कि ये डीएनए मैच हो रहा है करके, तो अभी मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि ये अभी मतलब कंफर्म हो गया कि अभी मेरी बेटी है दुनिया में नहीं है। जी, ये आपको कोई डाउट था कि ऐसा नहीं हो सकता है? आपको यकीन था कि ये श्रद्धा ही थी? जी हाँ, जिस वो हिसाब से उसने जो बताया था, वो वाकया मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये कैसे बता सकते हैं इसे। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि शायद झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो ये जो अभी जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आफ्ताब का नार्को टेस्ट, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, सब में आफ्ताब ने माना है कि उन्होंने श्रद्धा को मारा है। उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए? जी हाँ, मैंने तो पहले से ही कहा था कि उसको फांसी होनी चाहिए। अब तो कंफर्म ही हो गया कि उसको फांसी होगी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कि इस केस के बारे में जो अब तक नहीं कहा गया, विकास जी, जो अभी इतना मीडिया में इतना बात और चर्चा हो रही है कि ऐसा हत्या हमने सुना नहीं है पहले, मगर ये जो अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, ढंग से कर रही है, आप सैटिस्फाइड हो? जी हाँ, जी हाँ, तो दिल्ली पुलिस तो ठीक से कर रही है कि जांच। तो अभी मुझे पूरा यकीन है कि अभी वो अभी जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट बनेगा, तो आगे चल के केस के बारे में भी मुझे आके देखना है। जी, विकास जी, अरविंद ओझा हमारे जो रिपोर्टर है वो क्लोजली पुलिस के साथ ये केस ट्रैक कर रहे हैं, वो खुद
अरविंद, हमारे साथ श्रद्धा जी के पिताजी जुड़े हुए हैं, आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो? देखिए विकास जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिया टुडे की टीम उस लड़ाई में आपके साथ है शुरू से ही। और मैं आपको बताऊं कि जो अभी खबर हमें मिली है कि जो रिकवर हुई थी बोन्स, वो आपका डीएनए जो एम्स में लिया गया था, उसमें सीएफएसएल रिपोर्ट में ये पुष्टि कर दी है कि वो जो बोन्स था वो श्रद्धा का ही था। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहता हूँ, क्या अब आपको उम्मीद लग रही है? मुझे अब तो पक्का कंफर्म हो गया है कि वो श्रद्धा के सकता है। अभी जब शायद बाकी के पार्ट्स मिले हैं तो मुझे यकीन हो गया है कि वो श्रद्धा हो सकते हैं। बुलाई हुई थी, ये सारी डिटेल्स आपको बताई गई थी? हेलो हेलो विकास, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए। जी, जब आपको दिल्ली पुलिस आई थी तो क्या आपको ये बताया केस अपडेट के बारे में कि क्या क्या रिकवर हुआ है और क्यों ने आपका लेना है? नहीं, अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं था उन्होंने कि अभी सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी चार्जशीट बनने के बाद ही आपको बताया जाएगा, फिर बताया उन्होंने। आपको क्या उस फ्लैट तक लेकर गई थी दिल्ली पुलिस, और क्या आफ्ताब के साथ आपको कहीं पर लेकर गई थी दिल्ली पुलिस? जी हाँ, जी हाँ। नवंबर को वो लोग मुझे भी साइट पे लेके गए थे, उस फ्लैट पे लेके गए थे। तब उन्होंने सब दिखाया आफ्ताब का घर, और वो जहाँ उसने बॉडी पार्ट्स जंगल में फेंके थे, वहां लेकर गई थी दिल्ली पुलिस आपको? जी हाँ, जी हाँ। नवंबर को लोग गए थे वहाँ पर। अच्छा, तो उस दौरान क्या आफ्ताब भी आपके साथ था या जी हाँ, जी हाँ, उसके साथ में ही था तब। तो सर उसके बारे में जरा डिटेल से अगर आप बता पाएं कि जब आफ्ताब को और आपको लेकर जंगल में दिल्ली पुलिस गई थी तो वहां पर क्या कुछ दिल्ली पुलिस ने किया था, किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया था? यही पूछा कि तू कहाँ से अंदर आया और कैसे वो डाल बॉडी पार्ट्स। तो उसने सब जैसे वो किया वैसे ही वो बता रहा था कि ऐसे में खड़ा के वो बॉडी पार्ट्स को फेंक दिया। यही मैं देख रहा था। तो उसमें आफ्ताब ने आपके सामने ये सारी चीजें बताई कि ये बॉडी पार्ट्स हमने यहाँ पर फेंके? जी हाँ, जी हाँ, मेरे सामने ही कुछ कर रहा था दिल्ली पुलिस को। ये पुष्टि हो चुकी है सीएफएस से, तो अब आपको इंसाफ मिलने की कितनी उम्मीद दिखाई दे रही है? मुझे बस अभी तो ये चार्जशीट मिलने के अभी जो कोर्ट में जो केस चलेगा तो मुझे लगता है ये फास्ट ट्रैक में जाके फिर जल्द इसका सामने आ जाएगा। किस तरह की सजा आप चाहते हैं? मैं कोई डिमांड है, उसको फांसी मिलनी चाहिए। ओवर टू नबीला जी, विकास जी, अब श्रद्धा का ऐसे जो हत्या हुआ है उसके बाद आप क्या कहना चाहते हो? उसके बारे में कुछ आपका मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो? ये जो इन्वेस्टिगेशन अब चल रहा है पैरेलली, मगर आपके मन में क्या चल रहा है? मैडम, अभी ये सब न्यूज़ देख के थोड़ा नर्वस हो गया हूँ, तो अभी बारे में बात नहीं करना चाहता। जी विकास जी, थैंक यू वेरी मच बट फॉर जॉइनिंग अस।